हेलो एंड नमस्ते एवरीबॉडी। मैं हूं भावना और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करना चाहती हूं इन योर पॉडकास्ट आपकी भावना। इस पॉडकास्ट में हम सेलिब्रेट करते हैं उन इंडियन वुमेन को जो कनाडा इमिग्रेट करके आई हैं और अपने एग्जाम्पल से, अपने काम से और अपनी चॉइसेस से कर रही हैं बहुत सारे लोगों को इंस्पायर। और जो हमारी आज की गेस्ट हैं वो कनाडा इमिग्रेट कर आई थी इन ईयर 2009 और चली गई थी वापस इंडिया और एक बार फिर से इमिग्रेट किया उन्होंने वेरी रिसेंटली इन 2021 और अब पिछले 3 साल से वो कर रही हैं यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी, एक ऐसी फील्ड जिसमें विमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि इन नॉर्थ अमेरिका एंड ऑल ओवर द ग्लोब। तो आइए जानते हैं हमारी गेस्ट से कि एक इंडियन इमिग्रेटेड वुमेन कैसे सोचती है, कैसे जोक्स क्रैक करती है और कैसे अपनी ऑडियंस को हंसाती है इन अ सुपर मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री दैट इज स्टैंड अप कॉमिक। विद आवर नेक्स्ट गेस्ट सौम्या पावा। हाय। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट पे आने के लिए और अपनी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी और जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। Thank you so much for having me, and you can't see in camera, but thank you for all the food you've laid out for me also. डोंट इवन मेंशन। ओके, सो हम वहां से शुरू करते हैं जहां से आपने इंडिया छोड़ा। That story is a little complicated Okay. because I've left India many times. अच्छा, तो इसलिए I think सबसे पहले मैंने इंडिया छोड़ा था that was like back in 2007. हाँ, मैंने अपना हाई स्कूल ग्रेजुएट करा and then I went to Europe to study. So that's the first time I left India. ओके, I went to Switzerland for hotel management. 2 साल मैं रही हूँ. I did an internship in Portugal, studied in Switzerland. हाँ, मैं स्विट्जरलैंड से सीधा कनाडा आ गई because my family in 2008 got PR too. So my parents came to Canada and I flew in from Europe. We spent some time in Canada. Everybody hated Canada that time. So हम एक एक करके सब वापस भी चले गए. My brother अच्छा। finished his studies in Waterloo हाँ, और फिर वो भी वापस चला गया. अच्छा, तो आप वापस गए। ओरिजिनली कहाँ से हो आप? दिल्ली. दिल्ली से। तो आप लोग सब वापस दिल्ली चले गए? Yes. ठीक है, फिर दोबारा घर वापसी के बाद दोबारा कनाडा आना कैसा हुआ? So there is only one magnet जो मेरी यही रह गई थी. That's my husband. Okay. Then husband or then boyfriend? Then boyfriend. So Uh-huh. 2009 to 10, I would say, we dated, me and Nishant, for 1 year. Okay. And we kind of broke up जब मैं वापस गई. But 2016 or 15, वो दिल्ली में था अपने cousin की शादी के लिए. And he had moved to Mumbai, but I didn't know because I was not in touch with him. अच्छा. He called me, messaged me. We got back in touch. We started dating again. 2016, 15, he contacted me. 16, we got engaged. Oh, you got engaged? Yeah. This is happening in India? All in India because he ठीक है. was also living in Mumbai. Right. We got married in Canada. You said कि आप निशांत से यहीं मिले थे, तो I'm guessing he was already a PR or a citizen? His family moved here when they were like, they've been here for 25 years, I think. When he was a teenager, वो Right. 8th या 9th standard में था, तो वो यहीं था. I met him through a common friend in Canada. And when he came to India, we got back together. Engagement India में हुई. Came back to Canada to get married. Just because paperwork would be easier for me. Correct. Instead Makes of getting sense. married there and all Very that. practical. Yeah. यहीं, and plus we wanted a small wedding. India में small wedding करके कुछ नहीं होता. So we were like Canada में कर लो, पहुंचेंगे ही 100 लोग भी बहुत होगा अगर पहुंचेंगे तो. 2016 में we got married. And after that we moved back to Bombay. We got married here, but we were living in Bombay only. अच्छा, तो आप सिर्फ शादी करने के लिए बस शादी करने के लिए यहाँ आए और फिर हम वापस बॉम्बे चले गए. He was working there. कनाडा आने का, तो वो मैरिज पेपर वर्क का हैसल नहीं चाहिए, तो चाहिए, यहाँ पे आप सिर्फ ऑफिशियली शादी करने के लिए आए थे. And Yeah. then you got back. Yeah. ठीक है, फिर आप you started living in Bombay. We were living in Bombay for 5 years. And Okay. during COVID is the time we decided to move back here. So 2021 में मैं इधर आ गई थी. I think 2020 में निशांत आ गया था मुझसे थोड़ा पहले. Okay, very So, recent, हाँ? Yeah. So now it's just been 4 years. तो सौम्या, स्ट्रेट चलते हैं आपके टैलेंट की तरफ, जो कि है स्टैंड अप कॉमेडी, राइट? तो इस कॉमेडी का कीड़ा कहाँ से? आपने होटल मैनेजमेंट पढ़ा है एंड आप दिल्ली में, बॉम्बे में, स्विट्जरलैंड में रह रहे थे, पोर्चुगल में रह रहे थे, तो कॉमेडी का कीड़ा कहाँ से जगा? मैं सारी जगह रह रही थी, मैं कख कर रही थी वहां पे लिटरली. आई हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ यूनिवर्सिटी 3 times. सो मैं स्विट्जरलैंड में पढ़ रही थी. तो मेरा 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स था जिसमें मैं एनरोल होके गई थी. विद इन 6 months आई वाज लाइक मैं नहीं रह सकती यहाँ 4 साल.
और मेरे को इतनी पढ़ाई भी नहीं करनी. ठीक है. So I switched from my course from the graduation course to a diploma course, which was like 2 years. So I was like 2 साल में निपटा देंगे. Then my parents came to Canada, तो मैं अपनी एक internship एक semester करके Canada आई. तो मैंने कहा कि छोड़ो, मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, मैं आपके साथ यहाँ business करूंगी, मेरे को पढ़ाई पसंद ही नहीं है. ठीक है. My dad tried really hard to send me back, but I was adamant that I will not go back to school. Wow, unhappy brown parents को convince करना is also an art. It's very funny because मुझे ना actually ध्यान नहीं कि उस time मेरे को सिर्फ अपनी इज्जत ध्यान है and मुझे एक desperation ध्यान है कि मेरे को formal classroom setting से नफरत है. मैं नहीं पढ़ सकती, मैं नहीं test दे सकती. I've refused to believe a teacher telling me something true as true a lot of times. Like I just मेरे को learning से problem नहीं है. I read a lot of books. Whatever I'm interested in right now, I'm learning Urdu. Yes. Since I moved to Canada, I've been reading about Native Americans. I've read like at least 5 novels about them, seen documentaries. I just don't like the study and test and monetize it. किससे ये job मिलेगी? The whole assessment part behind it. Assessment and also just the idea of doing just one thing. I get bored. हाँ, पेपर पे डिग्री और फिर एक ही सब्जेक्ट की होटल मैनेजमेंट है तो फिर आपको होटल की मेन्यू कॉस्टिंग से लेकर हॉट वाटर कॉस्टिंग, रूम मेंटेनेंस चार्जेस, आपको मतलब वो एक ही फील्ड में इतना डिटेल में आप दुनिया में और कुछ सोच ही नहीं सकते. कुछ और पढ़ने का टाइम ही नहीं है. आई डोंट लाइक दैट थिंग एंड आई एम वेरी हैंड्स ऑन. आई लाइक टू डू थिंग्स इन माई ओन टाइम. व्हेन आई हैव टाइम आई कैन बी अप टिल 4 AM in the morning reading a book and there will be days when I have not done anything at all and I've just spent months just sleeping and doing nothing. I feel like my kind of people, if I didn't have the privilege of my background where my parents and my in-laws and my husband, everybody always had a house, a job to support me. If I was like somebody without privilege, I'd probably be a homeless person. I'm serious. That's what I'd be living on the street because जो भी मैं करती हूँ मेरे को वो करने में सिर्फ मजा आता है. मेरे को उसको मोनेटाइज करने का कोई शौक नहीं है और मैं मोनेटाइज करने के लिए करती नहीं हूँ. कभी मेरी किस्मत अच्छी होगी तो कुछ मोनेटाइज हो जाएगा मगर आई कांट प्लान लाइफ एंड डिग डीप इनटू थिंग्स कि ओ इससे ये कमाएंगे और फिर यहाँ पहुंच जाएंगे. And that is because of your privilege और आप ये खुद ही कह रहे हो, मैं acknowledge कर रही हूँ. Yeah, and I feel like a lot of people like me who don't have that privilege, I have a lot of empathy because I feel like कि मेरे जैसे है, they just probably if they can't keep a job, I've changed some 12 jobs in the 5 years that I've been working. So if they can't keep a job there on the street, so I can't keep a job. I have somebody who will provide a house. That's the only difference. Yes. So I don't think that's a big one. Yeah, it's a big one. It's the difference between me sitting here and somebody else not, right? Because again, comedy is also not something that I'm monetizing at all. It's not something that makes me money. You're doing it out of passion because it gives you happiness and satisfaction. Yeah, and most people right now, unless you become a big comedian with 1 million followers and everything you put on YouTube is giving you money and every show you're selling tickets, maybe you get there one day. But I'm doing it for the joy of it. Right. सौम्या, बट ये बहुत सारे जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, बहुत सारे क्रिएटिव लोगों का सोल कैरेक्टरिस्टिक है कि उनको एक चीज में आप प्रिविलेज से आ रहे हो तो यू स्विच इट वेरी इजीली. बट आई हैव सीन पीपल जो प्रिविलेज से नहीं है, वो उतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंशियली बट कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और वो खुश नहीं होते वो एक 9 to 5 जॉब करके एंड they do it as a side gig, a side hustle. वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, including myself. Yeah, so that is the thing. एक आर्टिस्ट में एक्चुअली में कोई void होता है. अगर आप में वो void नहीं है तो आप कुछ और क्यों करोगे? Say that again. हर आर्टिस्ट में मतलब एक खाली जगह है. उस इंसान की पर्सनालिटी में, दिल में, ख्याल में, दिमाग में कहीं पे कमी है. हाँ, कि वो अगर वो छेद नहीं है, वो होल नहीं है तो आप क्यों करोगे? आप अभी टीवी देख सकते हो, अपने बच्चे के साथ बैठ के उसे खाना खिला सकते हो, खुद खा सकते हो अपने पजामाज में. आपने पूरा सेटअप करा है, मेरे को बुलाया है, हम ये कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ और चाहिए जो आपको अभी नहीं मिल रहा है. तो प्रिविलेज वाली बात असाइड, मतलब मैं आपको ये बात बताऊंगी बिकॉज मैं कॉमेडी में हूँ और उससे पहले मैं बॉम्बे में भी कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग में थी और मैंने बहुत सारे क्रिएटिव, मेरे हस्बैंड इज अ एस्पायरिंग एक्टर, he's done some work too. Nice. And I like to write also other than comedy. And मैं बहुत पिछले I would say 10 साल से मैं almost surrounded हूँ बहुत सारे creative लोगों के. Correct.
और सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल क्रिएटिव Both लोगों lot. से। हाँ, ठीक है। और चाहे आपके पास आप सही जगह पे सही टाइम पे थे और आपने कुछ अचीव कर लिया और उससे आपको एक फेम मिल गई एज एन आर्टिस्ट, या आपने सारी गलत चॉइसेस ली और आप बहुत मनमौजी थे, या आपने जब टाइम था टेस्ट होने का मेरी तरह ठीक से टेस्ट नहीं दिया, बिकॉज आई डोंट टेस्ट वेल, यू वर लेबल्ड फेल। या लाइक इवन इन अ फील्ड ऑफ योर चॉइस, अगर मेरे को टेस्टिंग से प्रॉब्लम है, मैं उस प्रेशर में नहीं परफॉर्म करती, मेरे दोस्तों के आगे मैं बेस्ट हूँ, अगर मेरे को कुछ प्रूव नहीं करना तो मैं बेस्ट हूँ और वो दिखता है मेरे पर्सनालिटी में, मेरे प्रोसेस में, जब मैं किसी के सामने हूं तो वो चीज, तो मुझे लगता है कि ये फर्क तो सबसे बड़ा होता ही है आर्टिस्ट में, कि कुछ लोग जो थोड़ा सा ट्वीक करना होता है कभी खुद को प्रूव करने के लिए, वो ट्वीक नहीं कर पाते और वो कहीं नहीं पहुंच पाते। मैं खुद पे तरस नहीं चाहती कि कोई मेरे पे तरस करे, बट मेरे को लगता है कि मेरी कमी वही है कि जब कुछ प्रूव करना हो उस टाइम पे मैं बहुत जल्दी पीछे हटती हूँ, मुझे वो नहीं करना चाहिए। व्हेन आई वाज टेलिंग यू कि वो जो कमी होती है वो कॉमन है, जो भी कुछ एक्स्ट्रा करता है उसको अपनी लाइफ में जो सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए थी, जो हमें बचपन से सिखाया गया है, पति, घर, बच्चा, गाड़ी और इसके बाद नेटफ्लिक्स एंड चिल, आपकी ग्रोथ रुक जाती है और वो ग्रोथ हर किसी को नहीं चाहिए, जिनको नहीं चाहिए उनके अगेंस्ट भी कुछ नहीं है, बिकॉज वो अपनी लाइफ में खुश है। अगर वो खुश है तो खुश है, बिल्कुल। मगर मेरे को अगर मैं अगर 3 हफ्ते रोज रात को 2 घंटे टीवी देख के सो जाती हूँ तो मुझे खुद से चिढ़ होती है। आई एग्री। वो प्रॉब्लम है मेरी कि मेरे में कुछ कमी है जिसको मैं भरना चाहती हूँ, और हर आर्टिस्ट में, हर क्रिएटर में वो कॉमन है कि आपके अराउंड की दुनिया और लाइफ जो भी आपने अचीव कर लिया या नहीं करा अचीव, वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। या वेल सेड, थैंक यू फॉर शेयरिंग अ वेरी प्रोफाउंड थॉट कि आर्टिस्ट में कुछ इंटरनल वॉइड होता है जिसको पूरा करने के लिए सारे आर्टिस्ट और क्रिएटिव लोग, क्रिएटर्स ऑल्सो, लाइक आई फील लाइक वो साइंटिस्ट में भी था, मतलब ये भी अगेन मैंने कहीं पढ़ा है, ये मेरा थॉट नहीं है। कोई रैंडम बंदे को बैठ के लगा कि अगर मैं फोन से इधर से बोलूं तो 4 घर वाले को भी मेरी बात सुनाई दे जाए, तो उसके लाइफ, हाँ, तो उसकी लाइफ में कुछ, इसके लिए कुछ क्रिएट करना है। हाँ, वो फोन इन्वेंट कर रहा था, तो वो क्यों ही कर रहा था फोन इन्वेंट, क्योंकि उसके पास जो खाना, घर, छत थी वो उसको इनफ नहीं थी, हाँ, तो उसे कुछ करना था। हाँ, ओके, वेरी वेल सेड यार, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। लेट्स गो बैक टू कॉमेडी। ठीक है, आप बचपन से ऐसा था कि यू वर वेरी ऑब्जर्वेंट, कि सारी चीजों को ऑब्जर्व करते थे, आसपास की जो नॉर्मल मंडेन चीजें होती है उनको ऑब्जर्व करते थे और बाद में रिफ्लेक्ट करते थे, या यू वर एन एंटरटेनर शुरू से कि डांस करके दिखा रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं, घर पे गेस्ट आए हैं तो 90s किड, सो ऐसा चल रहा था? नहीं, वो वाला ट्रॉमा नहीं दिया मेरे को मेरे मम्मी पापा ने कि डांस करके दिखाओ। द थिंग इज कि कॉमेडी का भी जो इग्नाइटर था स्टैंड अप कॉमेडी का, पर्टिकुलर कनाडा ही था, बिकॉज आई थिंक अभी 5 साल हो गए ऑलमोस्ट, पर अभी भी वही एडजस्टमेंट पीरियड ही चल रहा है, बिकॉज समहाउ मेरे को यहाँ पे एक वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं फील होती है, और एक पुल है उधर की तरफ, राइट, बट आई एम नॉट श्योर इफ आई फील दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग हियर, कि मैं पूरी जिंदगी यहाँ रहना चाहती हूँ। और उस रीजन की वजह से मेरी जो लास्ट जॉब थी बिफोर दिस वन, आई वाज इन बैंकिंग ओनली विद अनदर बैंक। ओके, आई वाज नॉट हैप्पी विद द पीपल अराउंड मी, विद द जॉब, एंड घर पे भी जो मैं कर रही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि काम से आए, टीवी देखा, खाना बनाया, वो रूटीन नहीं समझ में आ रहा था। क्रिब करा लाइफ के बारे में कि यहाँ पे ये काम करना पड़ता है, यहाँ बर्तन धोने पड़ते हैं, थोड़ा सा रोए, थोड़ा सा धोए और फिर सो गए, जैसे ही वीकेंड आया तो कुछ खाने चले गए। तो कुछ ऐसे अपनी ग्रोथ नहीं फील हो रही थी और बहुत बोरिंग लग रही थी लाइफ। तो रैंडमली, और मॉनेटरी ग्रोथ आपको एक्साइट नहीं करती? मेरे को पैसे से कोई, तो अगेन ये फिर मैं एक्नॉलेज ही बहुत ज्यादा करती हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे आसपास के दोस्तों के पास, स्पेशली कॉमेडी के दोस्तों के पास शायद ये प्रिविलेज नहीं है पैसे का। एवरीबडी इज कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हियर टू मेक समथिंग आउट ऑफ देमसेल्व्स। तो वो प्रिविलेज मेरे पास है, तो मेरे को लगता है कि वही बात है ना कि कोई, देयर इज ब्रेड ऑन द टेबल देन व्हाट डू यू वर्क, लाइक अगर आपके सर पे छत है और रोटी है तो फिर वेल सेड सौम्या, आई गेट यू, कि बेसिक्स तो मीट हो गए हैं ना, मीट हो गए हैं, तो अब क्या करें? लाइफ, भगवान ने लाइफ दी है, पेरेंट्स ने लाइफ दी है, तो इस लाइफ का करें क्या? मोस्ट बच्चों की या मोस्ट लोगों की लाइफ, एंड स्पेशली जो इमिग्रेट करके कनाडा आते हैं, उनकी लाइफ, उनका यूथ इसमें निकल जाता है कि अपने लिए कुछ सेटल कर लें, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ सेटल कर लें, और अपने पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा, एग्जैक्टली, और अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा सपोर्ट कर सके। वो इसी
I would not call it a race, but I would like to call it इस life circle में ही busy रहते हैं. Yeah. Now आपको ये नहीं करना है. हाँ, right? मतलब this is taken care of. Yes. तो अब क्या करें लाइफ का? Exactly. Right? That's the thing that you're going through. Yeah. Correct? Yeah. So same, right? So कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पे कोई अगर फाइनेंशियल प्रेशर कभी आया भी है तो वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, वो मेरी चॉइस थी कि मैंने जॉब क्विट कर दी या मैंने डिसाइड करा कि मैं मूव आउट करूंगी अपने लॉस के घर से. तो कोई भी डिसीजन जो मैंने खुद लिया उसका फाइनेंशियल रेपरकशन के लिए तो मैं नहीं ब्लेम कर सकती कि मेरी लाइफ बहुत मुश्किल है. बट मेरे को ऐसा लगता है कि होता यही है कि जब आप एक सर्कल में होते हो कंफर्ट के भी, ये वही वाली बात आ गई आर्टिस्ट वाली कि एक दिन मेरा हस्बैंड टीवी देख रहा था, मैं शाम को जल्दी घर आ गई थी, पूरी शाम मैंने उसके साथ टीवी देखी और मेरा सर दर्द हो गया ना. वाज लाइक कि मेरे को नहीं करना और ये कि मेरे को नहीं मजा आ रहा है. राइट. तो मैं ऊपर गई अपने रूम में और मैंने एक आई थिंक 5 मिनट का एक सेट लिखा, लाइक एक पेज ऑफ जोक्स लिखा. और वो थॉट भी मुझे रैंडमली आ रहा था, मतलब वो ट्रेन ऑफ थॉट मुझे अभी तक ध्यान है कि मैं बैठी हुई थी. आई वाज लाइक मेरी अरेंज मैरिज नहीं हुई है तो भी मैं उस सिचुएशन में हूँ जिसमें मैं होना नहीं चाहती हूँ. जिनकी अरेंज मैरिज होती है उनके साथ क्या होता होगा. इस इंसान से मैं प्यार करती हूँ, ये मुझे कनाडा लेके आया है और मैं खुश नहीं हूँ, पर तो भी मैं कंप्लेन नहीं कर सकती हूँ. पर इमेजिन कि आप उस इंसान से भी प्यार भी नहीं करते और जगह से भी नहीं प्यार करते और आप उसके साथ फंसे हो एक घर में. तो कहीं और उसी थॉट से कि अरेंज मैरिज में लड़कियों को एक्चुअली में क्या देखना चाहिए एक इंसान में, वो मेरा पहला सेट था जो मैंने लिखा था. और वो जोक्स थे, जस्ट स्टूपिडिटी थी वो, उसमें कुछ प्रोफाउंड या मीनिंगफुल कोई बात नहीं थी, वो बिल्कुल सिली बातें थी. मगर मैंने वो बस 5 मिनट लिखे क्योंकि मैं बोर हो गई थी टीवी देख के. और निशांत नीचे टीवी देख के कुछ घंटे बाद ऊपर आया तो उसने कहा कि क्या कर रही है तू बेडरूम में बैठ. मैं कुछ लिखा है तेरे को सुनाऊं. तो मैंने उसको ऐसे ही पढ़ के 5 मिनट में सुनाया और वो हंसा बहुत. ही इज लाइक इट्स वेरी फनी. तेरे को लगता है मैं स्टेज पे बोलूं? ही इज लाइक सर्च कर, कोई ओपन माइक है तो चलते हैं. Oh, nice. और हमें आई थिंक उस लिखने के विद इन वीक में लाल बटन विच इज अ NGO परफॉर्मेंस आर्टिस्ट के लिए ब्रैम्पटन में, राइट, उनका ओपन माइक मिल गया टोरंटो में. वो कॉमेडी बार में ओपन माइक कर रहे थे जो बहुत ही सुंदर रूम है, बहुत अच्छा वेन्यू है. फैंटास्टिक. और मैंने मैसेज करा और उन्होंने कहा आप आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और मैंने अपना पहला सेट वहां करा. और कैसा हुआ? वो अच्छा रिसीव हुआ. लवली. और उसके बाद आई थिंक अब 3.5-3 years हो गए. I truly enjoy it. Yeah, that's fantastic. It's the best thing. Because लाइफ में हर रोज एक नई ट्रेजेडी होती है. एक एज के बाद आई फील कि एक्साइटिंग, लोग बोलते हैं कि अरे कॉलेज के दोस्त कितने फन होते हैं. बिकॉज जो कॉलेज के दोस्त थे उस टाइम पे आप यंग थे, केयरफ्री थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी. वो टाइम फन था. तो वो टाइम और वो लाइफ स्टेज फन थी. तो हर रोज आपको न्यूज मिलती है एक फनी कि उसका उस कॉलेज में हो गया, उसने उसको ये बोल दिया, उसकी बंदी ने उसको ये कह दिया, उसका बॉयफ्रेंड उस पे चीट. सो देयर इज ऑलवेज लाइक समथिंग फनी हैपनिंग. करेक्ट. बट आफ्टर क्रॉसिंग 30 आई हैव टू से दैट एवरी ईयर किसी एक दोस्त की एक प्रॉब्लम, हर साल अडल्ट बुरी खबरों की लाइन लग जाती है कि किसी की जॉब चली गई, किसी का कुछ हो गया, किसी का बच्चा नहीं हो रहा, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का बेसमेंट फ्लड हो गया, किसका बेसमेंट फ्लड. तो इट्स लाइक ट्रेजेडी आफ्टर 30 एंड आई वाज लाइक दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू कॉमेडी बिकॉज हर एक ट्रेजिक न्यूज के साथ डील करने का बेस्ट तरीका ह्यूमर है. ह्यूमर से इसको डील किया जाए. लवली यार, ग्रेट लाइफ टैक्टिक. सो हमें चलते हैं तुम्हारी जर्नी पे वापस थोड़ा सा. तुम कनाडा 2 बार आके जा चुकी हो. तो बैक इन 2009 और अभी 2021 में जब आप लोग आए तो कोई कल्चर शॉक लगा था? मेरा पहला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, जितने भी कल्चर शॉक्स लगने थे वो सारे यूरोप में लगे थे. आपको ये सरप्राइजिंग लगेगा कि एक्चुअली में नॉर्थ अमेरिका यूरोप के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब कॉन्जर्वेटिव है. इट्स हिलेरियस. ये मेरा फेवरेट एक जोक है जो मैं करती हूँ कि ब्रिटिश लोग इंडिया आए और हम लोग साड़ी के नीचे ब्लाउज नहीं पहनते थे एंड दे फोर्स्ड अस कि ये तो सिविल नहीं है. इट्स ट्रू that they were like, especially I think this is a story from somewhere in Bengal or something where they were like British women were like कि ये Indian ladies हमारे क्लब्स में बिल्कुल सफाई के लिए भी नहीं घुस सकती क्योंकि ये ब्लाउज ही नहीं पहनती है. और ब्रिटिश कल्चर अगर आप तब के कॉस्ट्यूम्स देखो तो वो गर्दन तक कवर्ड होते थे, यहाँ तक बटन अप होते थे, रिस्ट तक बटन अप होते थे. और उसके बाद इंडियन विमेन टू पार्टिसिपेट विद द ब्रिटिशर्स, उन्होंने ब्लाउजेस सिले. और अब जब आप यूरोप के बीच पे जाते हो तो आपको एक न्यूड बीच पे जाने की जरूरत नहीं है. यूरोप के किसी भी बीच अपनी ब्रा उतार के घूम सकती है. अब से तुम हमको अंडरवायर दे गए और खुद तुमने उतार दिए यहाँ के कपड़े, तो हम तो पहले से ही फ्री थे, हम तो पहन ही नहीं रहे थे.
So this is like just a bit that I do, but it's Right. true It's for true. today. It has roots in its हाँ. history, right? Yes. Actually, I'll be honest. Mhm. This is also one observation. Europeans are more progressive Mhm. because वहाँ पे comparatively immigrants locals के साथ कम amalgamate हुए हैं, और जो locals हैं वो again वो इतना developed है over time that their history and culture that they don't really care. उन पे कोई और कल्चर का इन्फ्लुएंस नहीं है. अच्छा. नॉर्थ अमेरिका में आपके पास एक सीरियन, एक इजिप्शियन, एक नाइजीरियन, एक ईस्ट अफ्रीकन, मोरक्कन, एक इंडियन, एक पाकिस्तानी, एक बांग्लादेशी, राइट? सो जब इतने सारे कल्चर्स आते हैं तो अप्रोप्रिएटनेस कहीं आई फील मिडिल ग्राउंड थोड़ी कंजर्वेटिव की तरफ शिफ्ट होती है, क्योंकि आप इतने सारे लोगों में से किसी को बहुत ऑफेंड नहीं कर सकते, बहुत लिबर्टी भी नहीं दे सकते. हाँ, तो यू हैव टू. तो ये आई थिंक ये सोसाइटी का सेल्फ बैलेंसिंग एक्ट होता होगा मेरे, ये सिर्फ मैं गेस कर रही हूँ. ओके. बट आप जब यूरोप जाओ, लाइक मैं अपनी यूनिवर्सिटी गई, मेरे लिए कल्चरली शॉकिंग था कि मैं आई थिंक फॉल या विंटर में ज्वाइन करा होगा यूनिवर्सिटी को, और समर आते ही सारी लड़कियां, नॉट कोई बीच नहीं था, कोई पानी नहीं था, कोई रेत नहीं थी, सबने कपड़े उतार दिए और जस्ट डॉर्मेट्री के कमरों के सामने कपड़े उतार के वो घास पे सब लेट जाते थे. सनबेथिंग. हाँ, वो सेम लाइक यहाँ पे भी बहुत कॉमन है, मगर अब आपको कनाडा में वो कम दिखता है. There is a certain unsurety and हमें कौन देखेगा या कौन अराउंड है हमारा, वो एक consciousness. And I'll be honest, they are very confident about their bodies. Absolutely. Yeah, not just thin and hot girls, anybody and everybody. I know what and when you see them, it's so liberating. और फिर खुद पे इतना गुस्सा आता है कि एटलीस्ट मुझे तो आता है कि मैं इतना क्यों सोच रही हूँ कि मैं ये पहन सकती हूँ या नहीं, इसमें मेरा पेट भारी लग रहा है, मेरे कंधे चौड़े लग रहे हैं, कि यू नो जस्ट दैट, बिकॉज उनको फ्री देख के जब वो ट्रूली एंजॉय कर रहे होते हैं, रैंडमली वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं अपने 2 पीस में, तो मुझे लगता है कि ये कैसे इतने कंफर्टेबल है. और मेरे को लगता है मेरे फॉर्मेटिव जो 3-4 साल थे यूरोप में, दे शेप्ड अ लॉट of how I am comfortable now in my skin. Today I truly feel like I'm very comfortable in my skin. Nice. तो अभी चलते हैं तुम्हारी कॉमेडी स्टाइल की तरफ. ठीक है. तो you are an Indian woman, right? तो तुम्हारी कॉमेडी में, तुम्हारे सेट्स में क्या वो रिफ्लेक्ट होता है? बहुत सारे जोक्स हैं ब्राउन पेरेंट्स पे, बहुत सारे जोक्स हैं 90s किड्स पे, ऐसा है? हाँ, पेरेंट्स पे बहुत जोक्स हैं, मगर मेरे ज्यादातर जोक्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे हैं. सोसाइटी ऑब्जर्वेशंस, जनरल सोसाइटी ऑब्जर्वेशंस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे हैं. वो जो चीजें मुझे स्टार्क लगी हैं, वो अब मेरे को अब वो मौका मिलता है उनको बोलने का, और वो फिर अब रेजोनेट करते हैं. टुडे एन 18-year-old comes to Canada and thinks about dating a white guy. I thought the same thing. You know what I mean? I heard your set. Yeah. Yes. So, and when I do it, it resonates with a 20-year-old because they're feeling that same feeling. And I don't think मैं बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स पे जोक करती हूँ. Yeah. Okay. तो आपका जो इंडियननेस है वो रिफ्लेक्ट होता है आपके जोक्स में? Yeah. मेरे को लगता है मैं हर जोक ही इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से करती हूँ. उल्टा इवन माई इंग्लिश सेट्स दैट आई डू एट लाइक नॉन देसी शोज, रेगुलर मिक्स्ड रूम्स जहाँ पे हर एथनिसिटी के लोग होते हैं रेगुलर, मेरे को लगता है कि वहां पे भी मेरे को थोड़ा मेरे जोक्स लंबे होते हैं, क्योंकि मैं पहले उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाती हूँ जोक करने से पहले, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट समझाना पड़ता है. ओके. बिकॉज मेरा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टली कनेडियन नहीं, बिकॉज आई वाज नॉट बोर्न हियर, सो इट्स ऑलवेज अ कंपैरिजन समहाउ. राइट. ओके, लवली. कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई जोक क्रैक किया है और उस पे कुछ रेसिस्ट स्लर या रेसिस्ट कमेंट आया हो, या इनअप्रोप्रिएट या डेरोगेटरी, कुछ हुआ है ऐसा? इंस्टाग्राम पे तो मतलब रोज ही आते हैं, फील लाइक हाँ इसमें जोक क्या था, अच्छा, डर्टी पाकी, सम नॉनसेंस. तो बट दोस आर द पीपल, वो मेरे जोक के लिए नहीं है, वो मेरे को सड़क पे चलते हुए भी यही बोल रहे हैं देख के, राइट? तो रेसिस्ट, जनरली रेसिस्ट, नॉट बिकॉज ऑफ माई कॉमेडी रेसिस्ट, हाँ वो बहुत है, मगर मेरे को सबसे ज्यादा एक्चुअली कॉमेडी को लेकर स्ट्रेसफुल यही लगता है कि कई बार इंडियन रूम्स में, जो मैंने आपको बताया कि मिक्स्ड ऑडियंस होती है ना, जब कोई अपने पेरेंट्स के साथ आया है, कोई अपनी जीजे के साथ आया है, उस सिचुएशन में कई बार जो जोक होता है वो अगर किसी को फनी भी लगेगा ना, वो उस पे उस टाइम हंस नहीं पाते. कई बार मेरे सेट्स पे ऐसे हुआ है कि एक हाफ रूम का जहाँ पे सब यंग है, कपल्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो हंसे हैं, और एक हाफ से मुझे ऐसे आवाज आई है मुझे सुनाई दी, really? हाँ, स्टेज पे सुनाई दी है इतनी लाउड, और मेरे को इतनी हंसी आती है. या बट द आइडिया इज दैट
हर कोई आपकी ऑडियंस नहीं हो सकता, दैट्स ट्रू, और हर किसी को मैं फनी नहीं लग सकती, और आप हर किसी को खुश भी नहीं कर और सकते, हर किसी को खुश भी नहीं कर सकते। Yeah. पर मेरे को ये जरूर लगता है कि अगर उनके साथ जो कंपनी थी वो नहीं होती, तो चाहे वो हंसते कम मगर नहीं करते एटलीस्ट। हाँ तो मुझे लगता है कई बारी स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, देसी कल्चर में, हम सोशल वैलिडेशन के लिए भी बहुत रिएक्शंस देते हैं। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे ही कोई सेक्स की बात शुरू करो तो एक बहुत फनी रिएक्शन है कि देसी लोगों की शक्ल पे दिख जाता है कि वो टाइट हो गई है सिचुएशन उनकी तो आपको करने से पहले ही पता है कि अभी हंसेंगे या नहीं हंसेंगे, पता नहीं। ऑलराइट, ठीक है। तो अब ये बताओ कि तुम्हारा फर्स्ट शो यू सेड वाज सक्सेसफुल, वेल रिसीव्ड, ओपन माइक फर्स्ट वाज वेरी वेल रिसीव्ड। कोई ऐसा जो एकदम बॉम्ब हुआ हो? हर हफ्ते होते हैं, रियली? ऑफ कोर्स, या। तो ये चीज कॉमेडी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बिकॉज सबको आसान लगती है, क्योंकि हम सबके सर्कल में 2 फनी लोग होते ही हैं जो लिविंग रूम में बहुत हंसाते हैं, राइट? करेक्ट। मगर लिविंग रूम में मैं कोई बात करूं और आप नहीं हंसो तो उसका रेपरकशन क्या ही है। मगर अगर स्टेज पे मैं कोई बात बोलूं और मैंने 2 मिनट से आपको कहानी सुनाई, अब सोचा कि आप हंसोगे पर आप हंसे ही नहीं, तो आप बोलोगे कि क्या था ये भी बात है कि कॉमेडियंस आई थिंक सबसे ढीठ आर्टिस्ट है जो द ढीठ वर्ड इज फॉर कॉमेडी। अगर आपको लगता है कि आप फनी हो, तो अगर आपको कॉमेडियन बनना है तो सेकंड चीज आपको अपनी पर्सनालिटी में देखनी है कि आप ढीठ हो के नहीं, थिक स्किन बनो। हाँ, मतलब थिक स्किन से भी ज्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थिक स्किन कैन ऑल्सो मीन कि आपने अब्सॉर्ब नहीं करा, अच्छा, आपने स्लाइड ऑफ कर दिया जो आपको फीडबैक मिला। हाँ। अगर मैं कभी बुरा करती हूँ तो उसको मेरे को खुद को इतना इफेक्ट नहीं होने देना कि मैं अगली बार स्टेज पे ना जाऊं, मगर ये भी ना देखूं कि मैंने बुरा क्यों करा, तो फिर तो मैं हर रोज जाके बॉम्ब करूंगी। फीडबैक लो पर डिसहार्टन मत हो। हाँ, तो इसीलिए मैं ढीठ वर्ड क्यों यूज करती हूँ, स्टबर्न भी कह सकते हो आप इंग्लिश में इसको। ढीठ इसलिए क्योंकि आपको मुश्किल लगे, आपको लगे आप फनी नहीं हो। मैं बता रही हूँ, जो लोग बिल्कुल फनी नहीं है उनको भी जब 2 साल हो जाते हैं तो कभी कभी वो इतने फनी, अब बोलते बंदा तो बिल्कुल फनी नहीं था, तो 2 साल से एक जोक मेरे को उसका समझ नहीं आया और 2 साल बाद इसने हंसा दिया मुझे, बिकॉज वो जिद चाहिए। और वो जिद, क्योंकि रुलाना बहुत आसान है, इमोशनल करना भी आसान है, वो इमोशंस हम सरफेस पे लेके घूमते हैं लाइफ में, स्पेशली जैसे मैंने बताया एज के बाद इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ तो क्लिक कर ही जाता है। रोज ही मम्मी की याद आ रही है, आज बुखार में खाना खुद बना के खाया है, तो आज कोई मम्मी के पे शेर सुना दे तो मैं रो ही लूंगी यू नो व्हाट आई मीन। मगर जब मैं परेशान हूं, मैं काम से सड़ के, अपने मैनेजर से सड़ के आई, उस टाइम पे मुझे हंसाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, काफी मुश्किल है। और उसमें अच्छा होना कि आप हर बार हंसा पाओ, वो उसके लिए एक जिद चाहिए कि मैं हार नहीं मानूंगा, आज ये नहीं तो कल ये, कल वो नहीं तो ये, मैं कुछ ट्राई करता रहूंगा। और वो अगर कॉमेडियन में 2 ट्रेट्स होने चाहिए, ऑफ कोर्स आप विटी होने चाहिए, फनी होने चाहिए, सोसाइटी के अच्छे ऑब्जर्वर होने चाहिए, और सेकंड ये है कि आप जिद्दी होने चाहिए। जो लोगों की ईगो होती है, जो बहुत सीरियसली खुद को लेते हैं, वो बहुत जल्दी गिव अप करते हैं कॉमेडी पे। मुझे अब ये बताओ कि तुम्हारा राइटिंग प्रोसेस क्या है? कि हमेशा नोटबुक लेके घूमती हो, या फिर लास्ट मिनट आइडियाज आते हैं जस्ट बिफोर द सेट कि अरे ये आइडिया आ गया, ये इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, या दोनों? हाँ, तो आई थिंक जब से मैंने कॉमेडी शुरू करी है, मेरे पास 5 बहुत अच्छे बैग्स हैं, ओके, हैंड बैग्स, ओके, और वो मेरे को मम्मी ने गिफ्ट किया था, भाई ने बर्थडे पे गिफ्ट किया था, सारे ब्रांड्स के जो आपको अच्छे लगते हैं, और मैंने उनमें से कोई नहीं उठाया जब से कॉमेडी स्टार्ट करी है मेरे पास वो एक, आप देखोगे, खादी का बैकपैक है क्योंकि मेरे पास एक किताब और एक पेन होता ही है, और मैं उसमें वो किताब और पेन, तो मेरे को अब लिटरली वो मेरा सूटकेस है। अब अगर मैं किसी दिन गलती से हैंडबैग उठा लेती हूँ कोई, तो मुझे लगता है कि क्या आज मुझे कॉमेडी तो नहीं करनी होगी, इसमें मेरा सामान नहीं है तो जब से मैंने कॉमेडी स्टार्ट किया, मैंने कोई क्यूट बैग नहीं उठाया है, सिर्फ एक मेरे पास वो मेड इन नेपाल वो है, हेम्प, 100% हेम्प का बैकपैक जूट का, जो मैं लेके हर जगह जाती हूँ। और हाँ, बुक मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। जब मेरे पास बुक नहीं होती, मैं ऑफिस में बैठी हूँ, काम कर रही हूँ, मेरे को कोई फनी आइडिया आया तो मैं ऑफकोर्स नोट बना लेती हूँ, मगर मेरे जोक्स हमेशा पेन से ही निकलते हैं। हाँ, सिर्फ थॉट लिखा जा सकता है फोन पे। तो शो से मैं जल्दी पहुंच जाती हूँ। मैं अगर 9 बजे शो है तो मैं 8:30 वहां बैठी हुई हूँ, जो शायद 9:15 9:30 शो शुरू होगा, और उस 1 घंटे में जब मैं रूम अब्जॉर्ब कर रही हूँ, अपने जोक के बारे में सोच रही हूँ, तो मैं लिखती रहती हूँ। अब जब से मैंने कॉमेडी स्टार्ट करी है, मेरा राइटिंग प्रोसेस उस केओस में बन गया है।
तो मैं घर पे लिख नहीं पाती। जब मैं खाली या शांत रूम में खुद को फोर्स करती हूँ लिखने के लिए, तो मैं 5 मिनट में अपनी बुक बंद कर देती हूँ। मेरे से मेरा मन नहीं है। और वो क्लब के शोर में लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, कॉमेडियंस हैं एक कोने पे, लोग ऑडियंस आके बैठ रही है, उस शोर में मैं एक कोने में बैठ के अपने बेस्ट 5 मिनट्स लिखे हैं मैंने। वंडरफुल। सो इन दैट सेंस वो प्रोसेस मेरे लिए चेंज हुआ है कि अब मेरे से शांति में राइटिंग नहीं होती है। तो और मैं वो बुक पे पेन से, कॉपी पे पेन से लिख, आज मेरे पास 45 मिनट्स ऑफ मटेरियल है इन द लास्ट 3 years जो मैंने लिखा है। तो वो 45 मिनट्स के आई वुड से बेस्ट 30 मिनट्स जो हैं वो शोज पे लिखे हैं, तो मुझे पता है कि मैं वहीं लिखती हूँ। हाँ। अगर मैंने घर पे लिखे होते तो मैं आपको बोलती मैं घर पे बैठ के लिखती हूँ। प्रॉपर जो बोलते हैं ना कि पंच लाइन की बात को बोलना कैसे है, लिखना उसको, वो मैं शोर में ही करती हूँ। और ये एक्चुअली मेरे को लगता है मेरी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट है ये, कि मैं केओस में थ्राइव करती हूँ। इसलिए मुझे इंडिया पसंद है। ये लोग नहीं समझ पाते क्योंकि ज्यादातर लोगों को वो प्रॉब्लमैटिक लगता है कि ट्रैफिक है, शोर है, एसी बंद हो जाता है दुकान का, तुम जिस ऑफिस में हो वहां पे लाइट चली जाएगी। मेरे साथ उल्टा है, मेरे को जुगाड़ करके ही मजा आता है। तो यहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं करना पड़ता है। सब पूरा देश इतना वेल ऑयल्ड मशीन है कि मतलब वो ट्रेन कभी लेट नहीं होगी, बस कभी लेट नहीं होगी। थैंक्स टू ब्रैम्पटन देयर सम फ्लेवर, लाइक रियली, लाइक इफ यू मिस इंडिया यू सी लाइक पीपल कंप्लेन अबाउट इट कि अरे प्लाजा में बच्चे पिकनिक क्यों कर रहे हैं। आई एम लाइक मेरे को चाहिए है ये। अगर मेरे बैंक के बाहर एक बंदा अपनी वैन की डिक्की से पूरी समर आम बेचता है हाफ प्राइस पे, और लोग इसे एक ब्रैम्पटन का हाल देखो सड़क पे, आई एम लाइक मैं आऊंगी गाड़ी चला के वो उसी से आम लेने, मेरे को सड़क पे गाड़ी खड़ी करके ही आम लेने हैं। That gives you some feels, huh? I just I thrive in that. Like even like back home, तो मेरा पहले थोड़ा टाइम मैंने before costume styling as a fashion designer, तो मैं मेरा एक स्टूडियो था, तो मैं कपड़े बनाती थी ब्राइडल वेयर एंड ऑल। अच्छा। तो उसकी शॉपिंग के लिए चांदनी चौक जाना होता था। तो सबके पास स्टाफ होता था। दिल्ली की बात, दिल्ली की, हाँ। तो सबके पास स्टाफ होता था, राइट। सारे डिजाइनर्स कहते हैं खुद क्यों जाती है तू, उनको लिस्ट दे दे। दुकान वाले कहते हैं आप फोन दे दो, फोन पे लिस्ट दो, हम भिजवा देंगे, हम इकट्ठा रखेंगे, आप उठा के ले जाना। मेरे को बस चांदनी चौक के धक्के खाने में मजा आता था। मेरे लिए वो दिन इंस्पायरिंग। मैं जिस दिन चांदनी चौक घूम के आती थी उस दिन मैं 2 नए आउटफिट डिजाइन करती थी। अच्छा। मेरे क्रिएटिव जूसेस, जब मैं लोगों को तकलीफ में अच्छा करते हुए देखती हूँ ना, प्रॉब्लम में, that inspires you, it inspires me and it makes me feel like मैं आज क्या करूंगी, राइट। कि मेरे पास, मैंने तो कुछ भी नहीं करा इनके मुकाबले। आपको पुश मिलता है, हाँ, कि जब बाकी लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, या तो मुझे भी कुछ करना है। उनके सर्कमस्टांसेस प्रोबेबली मेरे से हार्डर है और वो कर पा रहे हैं, तो फिर मैं कैसे कि मैं बस कुछ भी नहीं, मतलब वो मजा आता है। सो आई लाइक इंडिया फॉर दिस थिंग ऑफ, जो भी आप स्टीरियोटाइप बनाते हो ना अपने दिमाग में एक इंसान के बारे में, कि इसने तो ऐसी साड़ी पहनी, ऐसे कपड़े पहने, ऐसे इंग्लिश नहीं आती होगी, ये तो ऐसे है, ये आई हैव सीन लेडीज दैट आई वुड जज एज पर दिल्ली स्टैंडर्ड्स एज नॉट स्मार्ट इनफ रीडिंग सलमान रश्दी इन अ लोकल ट्रेन, राइट। एंड I like India for the fact that it breaks stereotypes all the time. अगर आप देखो ना, तो फिर आपको इंस्पिरेशन मिलती है वहां पे रह के कि हम इतने वाइब्रेंट जगह पे रह के, जहाँ पे हर कोई जुगाड़ लगा के बुरे से बुरे में अपने लिए कुछ अच्छा कर रहा है, करने के लिए एटलीस्ट सोच रहा है और थ्राइव कर रहा है। और उसमें अगर हम सब कुछ होने के बाद भी बैठ के कंप्लेन कर रहे हैं, तो फिर हमसे ज्यादा स्टूपिड कोई नहीं है। सो इन दैट सेंस दैट्स व्हाई आई लाइक इंडिया सो मच। तो तुम्हें स्टेज पे स्टीरियोटाइप्स तोड़ने में मजा आता है? बहुत ज्यादा, हाँ, या और सबसे ज्यादा इंडियंस के लिए तो ऑलरेडी मैं हूँ ही स्टीरियोटाइप ब्रेकिंग, बिकॉज मैं मैरिड हूँ, मैं 35+ हूँ और मैं कॉमेडी कर रही हूँ, तो वो ऑलरेडी इनफ है उनके लिए। बट मेरे को गोरों का स्टीरियोटाइप ब्रेक करने में बहुत मजा आता है, बिकॉज आई फील लाइक Canadians born and raised here have this thought so many times after shows. It's my Canadian friends who come up to me and be like, you're such a wholesome looking Indian lady, but the nonsense you talk. They're like, it's so fun to see you, but they're like, because they have a stereotype of what an Indian person is, feels, thinks. और फिर अगर आप स्टेज पे जाके बात करते हो about dating a white boy, about trying to do something that they don't think Indian women do in general. True. This comment is consistent, okay? I get it every few months. One is that you're such a wholesome looking girl, and then you talk about all this sex and drugs and rock and roll. Like, you know what I mean? Like, you don't look like... you check the good girl box. Yeah.
and you talk like a bad girl. Yeah. So तो like वो you're so अच्छा- wholesome, you dress so well. Like, okay, so I have to dress trashy to talk trash. Like that's the It's yeah, exactly. People don't understand. It's all here. So I did a joke about blowjobs, okay? And these two young girls, it was not obscene, but it was funny. Like it was, I didn't do anything which I'm was. sure they were giggling. They all laughed. Everybody Oh, they laughed. laughed? But Okay. after the show, they were like, when you come on stage, you're like such a good, proper girl, and then you say these things. It is so funny to just hear you say them. We don't even remember the joke, but it's just funny because Coming you're out not, of your mouth. yeah, expecting you to say this, right? Yeah. वो स्टीरियोटाइप वो सबके दिमाग में होता है, चाहे वो कनेडियन हो या वो इंडियंस हो. लाइक आई सेड कि इंडिया में ना कॉमेडी की जो मार्केट है वो बहुत अलग है यहाँ से. उसे हम ऑलमोस्ट प्री मैच्योर मार्केट कह सकते हैं, मैच्योर नहीं है. बिकॉज सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर के 2-3 शहर है जहाँ पे एजी कॉमेडी होती है. अच्छा. जहाँ पे यू कैन गेट लाइक महीप सिंह, इफ यू नो, a 50-60-year-old man talk nonsense. Yes. And the audience get wants laughs. to laugh. Yeah, I know. Yeah. Just the way he says things. Yeah, Yes. and he's hilarious. If you see most of India still, उनके लिए acceptable comedy is the great Raju Srivastav, Kapil Sharma. It's homely comedy. Little bit body shaming, but not too mean. You know, a little bit wife and husband nok joke, little bit saas bahu nok joke. Banters, huh? And that everybody's on board with. But there are some topics where even if there is a Off joke, limits. yeah, we are not Completely. ready. Yeah. YouTube पे all these controversies around comedy also. I feel like the reason is कि वो 50 लोगों को मजा आता है, लेकिन वो जो 50,000 देख रहे हैं वो रेडी नहीं है. हाँ, वो शायद कभी भी ना हो, और हो सकता है आज से 5 साल बाद आप ही हंस रहे हो कि एक टाइम पे इंडिया में इस बारे पे भी लोगों को जेल हो रही थी. You never know which direction it goes. ठीक है. तो समय अभी ना